नमस्कार आप सभी को। आज का ये सत्र हमने नाट्य शास्त्र का इसलिए रखा है, ये पूरी सीरीज चलेगी 3, 4, 5 एपिसोड में। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है, जैसा बताया जाता है कि 200 BC पूर्व से 500 BC का एक बड़ा समय है। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक माइथोलॉजिकल कहानी भी है जो मैं बताऊंगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, खासतौर से नाट्य शास्त्र को लेके बहुत ज्यादा आज भी रिसर्च होती है, अलग अलग तरह के उसको जोड़ के देखा जाता है ईस्ट और वेस्ट को। इवन एक बहुत अच्छा मैं एक वो देख रहा था पीछे जिसमें सलमान रश्दी कहीं कल्चर पे बात कर रहे थे, तो उनका एक बड़ा खूबसूरत कोट था और मैं शायद पढ़ के सुनाता हूँ आपको। नाउ देयर इज अ टेंडेंसी टू से दैट वेस्टर्न आइडिया, दैट्स नॉट हाउ वी थिंक ओवर हियर, but the Indian traditions also include, from its very earliest time, very powerful defenses of free expression. While Deepa Mehta and I were working on the film Midnight Children, one of the things that we often discussed was a text dear to our hearts, the Natya Shastra. In the Natya Shastra, we see the gods being a little bit bored in heaven and deciding they wanted entertainment. So a play was made about the war between Indra and Asuras, telling how Indra used his mighty weapon to defeat the demons. When the play was performed for the gods, the demons were offended by their portrayal. The demons felt that work insulted them as demons. That demonness was improperly criticized and they attacked the actors. Whereupon Indra and Brahma come to the actors' defense. God were positioned at all four corners of the stage, and Indra declared that stage would be a space where everything could be said and nothing could be prohibited. So, in one of the most ancient of Indian texts, we find explicit and extreme defense of freedom of expression, as you can find anywhere in the world. This is not alien to India. This is our culture, our history, our tradition, which we are in danger of forgetting, and we will do well to remember it. ये सलमान रश्दी का एक कोट था और ये इसलिए मैंने इसको से स्टार्ट करना शुरू किया कि आज भी नाट्य शास्त्र को हम लोग बहुत अलग अलग नजरिए से भी देखते हैं, ईस्ट और वेस्ट, और जो खासतौर से हमारी अपनी सभ्यता है ईस्टर्न वर्ल्ड, उसमें भी बहुत सारी उसका एक अपना अलग नाटक को लेके एक अपना अलग अंदाज रहा है, एक अपना तरीका रहा है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं, आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस गुरु जी स्पेशली आज के सेशन के लिए। और तो वी आर ऑनर्ड टू हैव मिस्टर प्रशोभ कलामंडलम सर हियर। So allow me to share a few words about Guruji. He is a gold medalist in Kathakali, advanced studies in Natya Shastra and Sanskrit literature. He has performed in several national and international festivals such as Bharat Rang Mahotsav, France, Mexico, South Korea, etc. He is a visiting faculty in prestigious schools of India and abroad like National School of Drama, Madhya Pradesh School of Drama, Hyderabad, Central University, Shanti Niketan, and he has won many awards. We all know him as a teacher, and is a very enthusiastic teacher with a very fresh and unique appeal of teaching. So welcome Guruji. So this is a theatre team actually. So we want to present only 2 videos, then we will start with Guruji once again. So पहला वीडियो चलाना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो ऑडियंस है यहाँ पे कि हम लोगों का एक थिएटर ग्रुप है, हम लोग भी इस पे काफी डिस्कस कर रहे थे कि नाट्य शास्त्र को कैसे प्रेजेंट किया, उसी का एक वीडियो बनाया इन लोगों ने। और दूसरा एक वीडियो है उसके बाद जिसमें वो कथा है कि नाट्य शास्त्र क्यों लिखा गया, उसके बाद हम गुरुजी के पास आएंगे। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि इसके 2 नाम क्यों हैं, नाट्यवेद और नाट्य शास्त्र? नाट्यवेद जो है वो जिंदगी के बारे में एक हॉलिस्टिक अप्रोच है ना। और नाट्य शास्त्र जैसे कि हमें नाम से ही समझ आता है कि इसमें टेक्निक्स के बारे में एक तरीके से उन्होंने टेक्निक्स को एक जगह पे कंपाइल करके रख दिया है कि अगर हमें किसी एक खास रस को या किसी एक खास भाव को पोर्ट्रे करना है या एक्सप्रेस करना है तो हम किन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल से नाट्य शास्त्र में सभी टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज़ को सिस्टमाइज कर दिया गया है
और नाट्यवेद इट्स ऑल अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में कि किस तरीके से इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई टाइम पीरियड बता सकते हैं हम नाट्य शास्त्र का एग्जैक्ट, कि मतलब किस एरा में और किस टाइम पीरियड में नाट्य शास्त्र लिखा गया होगा? मैंने पढ़ा है कि 500 BC से 500 AD के बीच में उसको कभी ना कभी लिखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि नाट्य शास्त्र रामायण और महाभारत से पहले लिखा गया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कृष्ण और राम का जिक्र नहीं आता कहीं भी। नहीं आता, ये तो है। जबकि देवताओं और असुरों का जिक्र आता है उसमें। हाँ, जो कि शायद इंडस वैली के टाइम पे इंद्र का भी जिक्र है, इंद्र का जिक्र है, असुरों का जिक्र है, और राम और कृष्ण नहीं, ये भी हो सकता है ना कि जैसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राम और कृष्ण इतने डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं कि उसके बाद जो भी लिखा गया उनका उसमें जरूर जिक्र आता। आज तक भी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा असर है अभी भी। हाँ, बिल्कुल। बल्कि भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग कोने में भी। तो हाँ, हो सकता है। हाँ। हो सकता है कि ये रामायण से भी पहले का लिखा हुआ। बिल्कुल। नाट्य शास्त्र डांस के बारे में है ना? नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअली नाट्य शास्त्र जो है ना, वो एक मिक्स्ड किताब है। उसे हम इंडियन थिएटर फॉर्म की एक किताब कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डांस के ऊपर नहीं है। उसमें आपको डांस मिल जाता है, म्यूज़िक मिल जाता है, और थिएटर के बारे में बहुत कुछ मिल जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ और सिर्फ डांस के बारे में, समझे? और इसमें हमें ये भी मिल जाता है, जैसे हमने किताब देखी है तो हमें पता है उसमें मुद्राएं भी हैं। और ख़ास की ये भी बात है कि आजकल हम देखते हैं कि कोई सिंगर हमें सामने से मूवी में दिख रहा होता है, वो एक्टिंग कर रहा होता है लेकिन आवाज़ कहीं और से आ रही होती है, गा कोई और रहा होता है। लेकिन नाट्यशास्त्र में हमें ये भी देखने को मिल जाता है, ये भी पढ़ने को मिल जाता है कि जो एक्टर स्टेज पर एक्टिंग कर रहा होता है, एक्चुअल में वो ही गा रहा होता है। तो नाट्यशास्त्र इज अ मिक्सचर। तो हम ये कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र सुर, लय, ताल, अभिनय का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है, मिलन है ना? हाँ। क्या आप लोग को पता है नाट्य शास्त्र किस किस एरिया में अभी तक पहुंच चुका है या पहुंचा है? कहीं नहीं, या फिर हर कहीं। मेरा मतलब है कि शायद ही कोई ऐसा कूचा या ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां नाट्य शास्त्र का जादुई और हैरत अंगेज असर न दिखा हो। ये अलग बात है कि नोइंगली हो सकता है या अननोइंगली हो सकता है, ज्ञान के साथ हो सकता है या अज्ञानतावश हो सकता है, लेकिन असर तो नाट्य शास्त्र का हर जगह है। तभी तो हम देखते हैं जितनी भी लोक शैलियाँ हैं या फिर देसी फॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, या फिर क्लासिकल फॉर्म्स भी, जैसे कुडियाट्टम है, कथकली है, यक्षगाना है, फिर कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, मणिपुरी भी, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी अगर हम देखें तो उन सभी डांस फॉर्म्स हो या फिर नाटक के फॉर्म्स हो, सभी पे नाट्य शास्त्र का बहुत ही गहरा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर दिखता तो है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि नाट्यशास्त्र लिखा किसके लिए गया था? इसका जवाब सिद्धांत देगा। सिद्धांत बताओ। चुप हो, चलो बताओ। हालांकि नाट्यशास्त्र जम्बू द्वीप और भारतवर्ष के लिए लिखा गया था, लेकिन आप लोग जानते हैं उस समय के भारतवर्ष और अब का भारतवर्ष पहले से कॉम्पैक्ट हो चुका है। पहले अफगानिस्तान और भी एशिया के कई बाकी देश थे वो वहाँ पे। तो हाँ, और भरत मुनि खुद भी ये कहते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है वो इंसानियत के जज्बे को पैदा करने के लिए और कायम करने के लिए, और हम इंसानियत के रास्ते पर बहुत आसानी से, सहजता से चल सके, उसके लिए बनाया गया। राइट आंसर, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ कि जो नाट्य शास्त्र है वो किसके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही यूजफुल हो सकता है, या है? अभिनेता, प्लेराइट, डांसर्स, डायरेक्टर्स,
क्यों डायरेक्टर्स? उसमें इतनी सारी स्टेज टेक्निक्स होती हैं यार। हाँ। और म्यूजिशियंस और जो नाटक करते हैं स्टेज प्ले करते हैं उनके लिए भी आर्ट डिजाइन वाले, हाँ, स्टेज का पता चलता है कितने टाइप के स्टेजेस हैं और कैसे कैसे होते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि फिल्म्स वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि खासकर हम अगर पुरानी फिल्में देखें तो उसमें हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है नाट्यशास्त्र की झलक को देखना वहाँ पे। वैसे ये मुझे लगता है सभी आर्टिस्टों के लिए है ना, सभी उसमें से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट हाँ, पेंटर्स भी ले सकते हैं, मतलब हाँ, मुझे लगता है कि जो आर्ट को समझते हैं या आर्ट फॉर्म को समझते हैं, एक तरीके से सब कुछ ही है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हो। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स की तो, क्योंकि बिना ताल के तो हम नाट्यशास्त्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। नाट्यशास्त्र का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है ताल, जो कि मेरे ख्याल से लॉर्ड शिवा से भी जुड़ा हुआ है, कहते हैं, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, नाट्य शास्त्र का जो ओरिजिन है उसको लेकर कोई कहानी है क्या? हाँ, बेसिकली ये जो टेक्स्ट है, ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है, वो लिखा ही इस फॉर्म में गया है कि जो भरत मुनि है, भरत मुनि ऋषि आत्रेय के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अरे तो अभी सब बता दोगी क्या? हाँ, ये जानने के लिए आप मिलिए हमसे हमारे अगले जूम सेशन में। आप आना मत भूलिएगा। अगर आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं तो बाय। तो नाट्य शास्त्र को लेकर थोड़ा सा इस तरह की चर्चा रही ग्रुप में पहले, और एक कहानी है नाट्य शास्त्र को लेकर, फिर गुरुजी के पास आएंगे हम। नाट्य शास्त्र प्राचीन भारत की एक ऐसी पोथी जिसमें भारतीय कलाओं को मोतियों की तरह पिरोया गया है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें शामिल हैं भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और कविताओं का पूरा जखीरा, जिसके रचयिता हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के शाब्दिक माने हैं नाट्य के सिद्धांत। नाट्य शास्त्र भारतीय कलाओं का वो विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें नाटकों की रूपरेखा, स्ट्रक्चर, मंच की बनावट, अभिनय की शैलियां, शरीर की हरकतें, बॉडी मूवमेंट्स, मेकअप और वेशभूषा, कॉस्ट्यूम्स, एक कला निर्देशक, डायरेक्टर का किरदार और लक्ष्य, व्याकरण, ग्रामर से लेकर संगीत का पैमाना तक शामिल है। नाट्य शास्त्र का आगाज भी कुछ इसी कारण हुआ। भरत मुनि इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सतयुग से त्रेता युग में बदलाव होने के कारण समाज भी बदलाव की ओर जाता है। जहाँ सतयुग में पापों की संख्या 0 होती है, वहीं त्रेता युग में बढ़कर 25% हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों में लालच, घृणा और हिंसा भी बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। देवता भी इससे काफी परेशान थे। जब उनसे ये सब देखा ना गया, तब इंद्र ब्रह्मा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पीड़ा बताते हुए उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। इंद्र कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपने इस दुनिया की तामीर की, इंसानों को पैदा किया, साथ ही साथ वेदों की रचना भी की, ताकि लोग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक अच्छा जीवन बिता सके। लेकिन फिर भी लोग अच्छाई की ओर ना बढ़कर बुराई की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा इंद्र को शांत कराते हुए कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा खिलौना क्रीड़ायंक दें जिसे न सिर्फ देखा जा सके बल्कि उसे सुना भी जा सके, जो लोगों को काफी आसानी से समझ भी आ सके और जो लोगों को सही रास्ते पर भी ले आए। ब्रह्मा इस बात से बहुत खुश नहीं होते हैं और कहते हैं, देखो, इसका जिम्मेदार तुम मुझे नहीं ठहरा सकते। मैंने इस दुनिया को बनाया, इंसानों को पैदा किया और वेदों की रचना कर उन्हें जीवन जीने का तरीका भी बताया। अब अगर लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसका साफ मतलब यही है कि वो वेदों को अनदेखा कर रहे हैं। इस स्थिति में मैं तुम्हारी क्या ही मदद कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव, ये सही है कि वेदों ने बहुत से इंसानों को सही रास्ता दिखाया है, उन्हें एक आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी किया है। लेकिन ब्रह्मदेव, इस महान ग्रंथ से समाज का एक तबका, शूद्र, वंचित रह गए हैं। शूद्रों को तो ना ही इसे पढ़ने बल्कि सुनने की भी इजाजत नहीं है।
ऐसे हालात में सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि आप एक ऐसे वेद की रचना करें जिसे पढ़ने, सुनने और समझने की इजाजत समाज के सभी तबके को हो। काफी वाद विवाद और इंद्र के सिफारिशों के बाद ब्रह्मा मान जाते हैं और फिर पंचम वेद नाट्य शास्त्र की रचना करते हैं, जिसे नाट्य वेद भी कहते हैं। हूबहू वैसा ही जैसे इंद्र ने कल्पना की थी। ऐसा नजर आ रहा था कि ग्रंथ किसी एक भगवान की ओर इशारा कर रहा था, जिसके 4 चेहरे और जुबानें थीं। ग्रंथ काफी लंबा था। इस ग्रंथ में तकरीबन 36 अध्याय और 6000 श्लोक थे, जिसे चारों वेदों के नाटकीय तत्वों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें ऋग्वेद से पाठ लिया गया, सामवेद से संगीत लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, अथर्ववेद से भाव और रस लिए गए। नाट्य शास्त्र का आधार कुछ इस प्रकार है। नृत्य यानी ताल और लय, नृत्य, ताल, लय और भाव। नाट्य में ताल, लय और भाव के साथ साथ शामिल है अभिनय। ब्रह्मा नाट्य शास्त्र को रचने का कारण इंद्र को बताते हुए कहते हैं कि मैंने इस शास्त्र में लोगों के धर्म और जरूरतों को शामिल किया है। यह भविष्य में पूरे समाज का मार्गदर्शन करेगा। इस शास्त्र में सभी शास्त्रों का सार रमा होगा और ये सभी कलाओं का आधार भी होगा। इंद्र ब्रह्मा को प्रणाम करते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर वो उस ग्रंथ को ले जाकर सभी देवताओं को सुनाते हैं। ग्रंथ काफी मुश्किल मालूम पड़ता था, क्योंकि इससे पहले कभी देवताओं को कोई नाटकीय अनुभव ना था, सो वह इसे धरातल पर उतारने और लोगों को समझाने के भी काबिल न थे। थक हार कर इंद्र फिर से ब्रह्मा के पास आते हैं और गुहार लगाते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा बनाया गया ये नाट्य शास्त्र देवताओं के समझ से परे है। सो आप ही किसी ऐसे इंसान को खोजिए जो उसकी जटिलताओं को समझकर इसे नाटकीय रूप में आम लोगों तक ले जा सके। तब ब्रह्मा भरत मुनि को बुलवाते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेने को कहते हैं। ब्रह्मा भरत मुनि से कहते हैं, भरत, तुम इसे लेकर जाओ। सबसे पहले इसको ऐसी भाषा दो जो लोगों को आसानी से समझ आ सके। चूंकि तुम्हारे 100 पुत्र हैं, सो अपने पुत्रों के साथ पहला नाटक खेलने का कार्यभार भी तुम्हारे ऊपर ही है। भरत वहां से चले जाते हैं और उस ग्रंथ के आकार को छोटा और आसान करते हैं। अपने पुत्रों के साथ एक नाटक खेलते हैं, समुद्र मंथन, जिसमें देवताओं की दानवों पर जीत दिखाई जाती है। यहीं से शुरुआत होता है हिंदुस्तानी कलाओं का इतिहास। थैंक यू। बहुत खूबसूरत वीडियो। कम से कम हमें उससे हमें एक आइडिया लगा कि कैसे नाट्य शास्त्र की शुरुआत हुई, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में क्या जिक्र है उसका। अब आते हैं हम गुरु जी की तरफ, पुरुषोत्तम कला मंडलम जी की तरफ। सॉरी, हमने आपको सर वेट कराया थोड़ा सा। पुरुषोत्तम जी के बारे में एक छोटी सी वीडियो है, जिससे हमें उनका जो कथकली और उनका जो नाट्य शास्त्र को लेके जो भी है एक रुझान पता चलेगा। तो एक वो वीडियो देखते हैं पहले पुरुषोत्तम जी की, फिर उसके बाद पुरुषोत्तम जी से बात करेंगे, गुरु जी से।
नमस्कार सभी को। ऐसा एक रविवार का सायंकाल में भारत का जो प्रधान ग्रंथ है, भारत का वैज्ञानिक लोकों से हमको मिला ये ग्रंथ, इसके बारे में, ये ग्रंथ में, ये शास्त्र के बारे में ऐसा मंथन करने के लिए ये राजीव गांधी फाउंडेशन और शाहीन का वो संस्था, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आपने तय किया। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे जैसा छोटी कलाकारों को ये अवसर दिया, उसके लिए मैं पहले धन्यवाद दिलाता हूँ। एक बात मैं पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। फिर भी मैं कला के बारे में, नाट्यशास्त्र के बारे में जो बातचीत करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ और संवेद करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। जो भी आपको मेरा भाषण समझ ना पाए आप बता दीजिएगा, मैं मेरा परिश्रम आपके लिए करूँगा। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम। ये नाट्यशास्त्र का पहला श्लोक है। पहले बोल दिया, ये वीडियो में दिखा दिया था, पंचम वेद जैसा सोच के ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र को बनवाया। ये बात थोड़ा अच्छा है, सही है, मानना पड़ेगा, क्योंकि नाट्यशास्त्र में एक श्लोक है, न तज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न गीयते। ये नाट्य में हमको देखिएगा राष्ट्रतंत्र और वाद्य गीत, शिल्पकला, चित्रकला, सभी जो आपको हमारा समाज में अभी हम देखते हैं, वो सब हम नाट्य में हमको देख सकेगा। इसलिए सभी विषय को जोड़ के ही हमको नाट्य करना पड़ेगा। एक चीज को छोड़ के हमको नाट्य करना, एक तो चीज को छोड़ेगा तो नाट्य नहीं होगा। इसलिए अभिनय के लिए नाट्यशास्त्र में एक और दूसरा श्लोक है, आंकिको वाचिकश्चैव शाहार्य सात्विकस्तथा चतुर्विधाया अभिनयेते विचय नाट्य संश्रयः। ऐसा 4 तरीके का अभिनय जोड़ के ही नाट्य पूरा होता है। ये 4 विधा, चतुर्विधा अभिनय क्यों हम लेते हैं? हमको खुद दिखाने के लिए, जो साहित्य में क्या लिखा है, क्या भाव है, वो सबको हमको कैसे दिखाना है, वो ये पूरा चतुर्विध अंग उसमें रहना चाहिए। नाट्य के लिए 2 धर्मी है, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। लोक धर्मी रियलिस्टिक एक्टिंग, नाट्य धर्मी स्टाइलिश्ड एक्टिंग। इधर नाट्य धर्मी के बारे में जो कलाकार, जो आस्वादक लोग हों, उसका थोड़ा जानकारी है, तो लोकधर्मी में भी उसका रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिस्टिक रास्ते में भी उनका ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि एक विषय को कैसे हम उसको how will approach the subject, you can understand very well. That time for the director, actor, designer, जो भी डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट वालों को नाट्यशास्त्र एक दिशा मार्ग, नाट्य थिएटर लोगों के लिए, जो कलाकारों के लिए हितकरीं दिशा दिशति नाट्यशास्त्र, उसका हित के लिए, उसका तात्पर्य क्या है, वो उसके अनुसार एक दिशा नाट्यशास्त्र में हमको मिलेगा।
ऐसा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा बोलता है, लेकिन सारे की सारा वर्ष में पुरोगम होते होते प्रगति के अनुसार अनुसार ऐसा आते आते ये सबको जोड़ के भरत मुनि ने इसको तैयार किया होगा, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि सिर्फ एक ऋषि, एक व्यक्ति को ये पूरा मिलके लिखना इतना सरल नहीं है। तो नाट्यशास्त्र कई वर्षों से उसका लेखन होते होंगे, उसके अंत में उसका कोडीकरण शायद भरत मुनि ने किया होगा। मैं नाट्यशास्त्र का जो चरित्र और उसकी अलग बातें में नहीं जाते हैं। मैं ये सेशन में मैं एक कथकली कलाकार हूँ। मुझे कैसे नाट्यशास्त्र का उपयोग हो गया और नाट्यशास्त्र मेरा कथकली में कितना नाट्यशास्त्र जोड़ा है, ये बोलने के लिए मैं रस के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं पहले बोल दिया नाट्य में चतुर्विध अभिनय है, आंगिकम, वाचिकम, सात्विकम, आहार्यम। एक कलाकार, एक व्यक्ति एक अभिनय करने के लिए आता है तो वो व्यक्ति को तैयार करना पड़ता है। जमीन से जो साधारण मिट्टी लेके हमको गढ़ बनाना नहीं होता है, वो मिट्टी को संस्करण के बाद आपको गढ़ बनाना सकता है। ऐसा व्यक्ति का शरीर और मन सबका उसका तैयारी करना पड़ता है। चलिए, कथकली में हमको मयूर पड़व जैसा अभ्यास करना पड़ता है और मसाज करके पैर से मसाज करके अंग को तैयार करता है। क्यों करता है? अभिनय ऐसा होता है, शिरोहस्त कटी वक्ष पार्श्वपात समन्विता अंग प्रत्यंग संयुक्तो षडंगो नाट्य संग्रह। ऐसा हमारा अंग है, षड अंग, शिर, हस्त, कटी, वक्ष, पार्श्व, पाद, पैर और हेड और हाथ और वक्ष, ऐसा पूरा शरीर सिर से पाद तक हमको एक्टर है तो उसका प्रयोग में पूरा ये शरीर का उसके लिए एक्टिंग के लिए तैयार करना पड़ता है। इसलिए नाट्यशास्त्र ने बताया है, नाट्य के लिए, अभिनय के लिए, नृत्य के लिए पूरा शरीर होना चाहिए। सिर्फ शरीर से, सिर्फ ये पूरा शरीर भी नहीं, उपांग भी है। नेत्र, भ्रू, नासा, अधर, कपोल, चिबुकानि उपांगानि। नेत्र, भ्रू, नासा, अधर, कपोल, चिबुकानि, ये षड उपांग। ये उपांग भी अच्छी तरह होना चाहिए, क्योंकि फेस, हमारा चेहरा एक्टिंग में एक प्रधान है, उसके लिए उसका तैयारी भी होना चाहिए। और चतुर्विध अभिनय में आंकिकम, वाचिकम, सात्विकम, आहार्यम, उसमें सात्विक को ज्यादा प्राधान्य है, क्योंकि जो विषय बोलता है वो ही है कंटेंट, वो ही है बीज। वो बीज का एलाबरेट करते करते एक्टिंग का जो प्रोग्रेस होता है उसको एलाबरेट करना है। तो उसको एलाबरेट करने तो वो सात्विक में, वो सब्जेक्ट में ये नट और जो डायरेक्टर होता है उसका ज्ञान अच्छी तरह होना चाहिए। नहीं तो एक सब्जेक्ट में शुरू होगा और दूसरा सब्जेक्ट में चले जाएगा, उसका विषय का गौरव भी छोड़ जाएगा। तो और ये भाव का अभिनय में, इसमें सात्विक में क्या होता है? रस का अभिनय होता है। रस का जो एक व्यक्ति का इमोशन, वो हमको कैसे मालूम होते हैं?
उसमें एक प्रधान अंग है नेत्र। नेत्र दृष्टि, जो दृष्टि भेद, हस्तभेद, शिरोभेद, दृष्टि भेद, ये ऐसा ऐसा पूरा एक एक अंगों को ऐसा ऐसा भेद रखेगा तो ये भाव में ये होना चाहिए। और आपको क्रोध है तो अब ऐसा होना चाहिए, वीर है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा एक एक तरीका। पाद को भी कैसे रखना आप, ये ऐसा कुंचितम अवकुंचितम, ऐसा टेक्निकल वर्ड है नाट्यशास्त्र में, मैं उसमें नहीं जाता हूं, क्योंकि ऐसा एक एक कटी को ऐसे रखेगा तो आपको एक स्थान, कथकली में जो हम ऐसा मलयालम में बोलेगा चौटी ताण निलकुआ, मीन्स जो पैर से मार के जो कथकली करने के लिए तैयार होते कि वो स्थान है वैशाख स्थान। और जो नृत्य का भरतनाट्यम ऐसा नृत्य पढ़ने वालों को ये पता है, मंडलम, अर मंडलम, मुझु मंडलम ऐसा। और हस्त में हस्त को कैसे रखना है, ऐसा पूरा एक एक भाव के अनुसार वो संदर्भ में कैसे बिहेव करना है, ये नाट्य शास्त्र ने बताया है। वैसा जो वाद्यकार ने वो वाद्य में सुशिरवाद, खनवाद, ऐसा वाद्यों में कैसे उसका इस्तेमाल करना है, जो ऐसा ऐसा उसका इस्तेमाल करेगा तो उसका शब्द ऐसा आएगा। जो चित्रकला में ये कलर ऐसा वर्ण देगा तो ये भाव है। ऐसा नव रस को दिखाने में एक एक कलर भी बताया है। तो अभी मैं बोलता हूं भाव के बारे में ज्यादा बोलने के लिए सोचता हूं। और दृष्टि, मैं वो दृष्टि से गया था। ऐसा रस के बारे में बताएगा तो श्रृंगार, हास्य, करुणो, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत चेत्यष्टौ रसा स्मृता। नाट्यशास्त्र में 9 रस की बात नहीं बोला है, 8 रस की बात, सिर्फ 8 रस की बात बोला है। ये क्यों बाद में आपको मैं बताएगा, नहीं तो आपको समझाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर द क्लास, क्योंकि इसमें दृष्टि को प्राधान्य है और एक एक रस को उसका स्थायी भी बताया है। जो श्रृंगार करते हैं तो ये लेडी कैरेक्टर का मैं दिखाता हूं। ये मेल कैरेक्टर का कुछ राजा है तो उसका वीर का साथ एक श्रृंगार। वो देखो एक बच्चे को लेके माँ ने कितना प्यार करता है, वो भी श्रृंगार है। श्रृंगार जो हमारा लवर के साथ रहता वो भी श्रृंगार है। श्रृंगार क्या है, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार में भी संभोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, ऐसा भी अलग 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 अवस्था भी है। और अर्थात में ये भी विभाव अनुभाव संयोगात रस निष्पत्ति ही। विभाव अनुभव, बाहर का जो अवस्था, जो संदर्भ हमको हमारा मन में उद्दीपन करता है, शरीर को, मन को भी, उस समय हमको एक विकार आएगा, एक इमोशन आएगा, उसको स्वाधीन हो जाएगा। तो वो अवस्था ये राइटर क्या लिखे रखा है उसके अनुसार हम कैसे बिहेव करना, एक टेक्निक बताया है। ऐसा जो भी नाट्य में
जो जो विभाग है उसके लिए वो काल में क्या क्या फॉलो करते थे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ये नाट्यशास्त्र में लिखा है। अभी भी ये नाट्यशास्त्र पुराना है तो भी नवीन है, पूरा है लेकिन अभी भी नवीन है, क्योंकि नवीन युग में भी अभी भी ये बातें करते समय भी नाट्यशास्त्र का इस्तेमाल पूरा जगह में हो रहा है। लेकिन सिर्फ इंडिया में, सिर्फ केरल में, सिर्फ दूसरे राज्य में नाट्यशास्त्र एक्चुअली ग्लोबलाइज्ड, क्योंकि ये नाट्य के लिए, नाट्य का प्रेजेंटेशन के लिए जो मनुष्य ढूंढता है वो सब इसमें मिलता है। इसलिए मैं पहले बोल दिया ततः ज्ञानम ततः शिल्पम, ये श्लोक, क्योंकि बाहर क्या है, वो ये समाज में क्या है, वो सब हमको दिखाना पड़ता है। ऐसा ये ग्रंथ सागर का गहराई हमको शायद पता चलता है, लेकिन नाट्यशास्त्र का गहरा हमको मालूम नहीं हो जाएगा। इतना साल से हम इसके ऊपर काम करता है, जो वो नाट्यशास्त्र को टच करने के लिए जाते हैं तो नाट्यशास्त्र दूर दूर जा रहा है, उसका गहराई, डीपनेस ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं। तो मैं वापस आता हूँ रस के बारे में। तो श्रृंगार का स्थायी है रति, रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेदि स्थायी भावाः प्रकीर्तिता। एक एक रस में एक एक स्थायी भाव है। हास्य में क्या है? हास्य करुण में शोक है। तो ये देखिए, मैं पहले बोल दिया उपांग का प्रैक्टिस, ये नेत्र भ्रू नासा अधर कपोल चिपुकानी उपांगानी, ये उपांग कैसे इस्तेमाल करना है। मैं श्रृंगार किया तो मैंने आईब्रो को पूरा ये किया, मेरा लिप को थोड़ा विकास किया। हास्य करने में आईब्रो तो थोड़ा उसको मैं टाइट करके शौक में देखिए हंसने वाला लिप को थोड़ा ऐसा कैसे ये सब उपांगों को इस्तेमाल करना है, ये ऐसा रखेगा तो ये हो जाएगा, ये भाव आएगा, ऐसा रखने में ये भाव, ऐसा शरीर को शिरोभेद, हस्तभेद, कटिभेद, ऐसा पूरा भेद रखा है रस की अनुसार। और उसमें दृष्टि भी ये होना चाहिए श्रृंगार में। स्निग्धा हृष्टा च दीना च क्रुद्धा डंबा भयान्विता, क्रुद्धा डंबा भयान्विता जुगुप्सिता विस्मयश्चेदि स्थायी भावेषु दृष्टयः। श्रृंगार में स्निग्ध होना चाहिए हमारा दृष्टि। एक फूल को हम देखेगा तब उसका सुगंध लेने में हम हमारा जो देखो, ये दुर्गंध है तो दृष्टि अलग है, सुगंध है तो दृष्टि अलग है, क्रोध है तो दृष्टि अलग है, श्रृंगार है तो दृष्टि अलग है। अद्भुत में जो आश्चर्य और जो भी दुख के साथ क्या हो गया भाई, इसमें एक एक रस में दृष्टि ऐसा रखना है, ये होना चाहिए। क्योंकि स्निग्ध एक शब्द को आप दिखाएगा तो आपको ढूंढना पड़ता है व्याकरण में जाके, ये स्निग्ध शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है।
वो अर्थ में ये स्निग्ध, संतृप्त, तृप्ति, ऐसा ऐसा आपको उसका पर्याय अर्थ देख सकेगा। तो ये सारे ये कैसे हमारा मन में लेके आएगा, हमारे दिमाग में पहले लेके आना है, तो आंख में कैसे दिखाएगा। तब वहां एक और बात है, ज्ञान लेने के लिए 3 पीढ़ियां हैं, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। क्योंकि श्रृंगार है, श्रृंगार के बारे में हम श्रवण, गुरुजी ने, टीचर्स लोग ने हमको बताया श्रृंगार ऐसा है, कुछ का श्रृंगार आता है वो हम देखा, बाद में श्रृंगार ऐसा हमारा सोच, हमारा लर्निंग बाय थिंकिंग एंड लर्निंग विथ एक्सपीरियंस। वो श्रृंगार को, ये क्या है श्रृंगार, वो हमको अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव के बाद ये रस निष्पत्ति हो जाएगा, नहीं तो अनुभव नहीं है तो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो जाएगा। उसको प्रेजेंटेशन का, अवतरण का पूर्ति अनुभव के अनुसार है। इसलिए एक श्लोक दूसरा श्लोक है, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्या पादम कालक्रमेण च। क्योंकि 25% नॉलेज गुरु देते हैं, उसके बाद 25 हम खुद प्रैक्टिस करके पढ़ के बनाना है, और 25 सीनियर्स लोगों के साथ, स्कॉलर्स के साथ बातचीत करके उसको फॉलो करके पढ़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ऐसा 75% हो गया तो बाकी 25 काल क्रमेण, जो ईयर आफ्टर ईयर बाय एक्सपीरियंस इट विल बिकम फुल। तो तब एक स्टूडेंट learning the things that students definitely the Natya Shastra will helpful, क्योंकि विज्ञान को लेने के लिए ऐसा हम कला में in the field of art we are always only student, I think always student. So in every artist, art learner, Natya Shastra will be the guide always. This much I am talking about this, and now we can, I think, start the interaction. Please, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो थिएटर करते हैं ऑलरेडी, और आपके कोई सवाल हो तो कोई भी बोल सकता है। शाहीन थोड़ा इसको कनेक्ट करें। सर एक्चुअली अभी जैसे आपने बोला कि श्रृंगार के बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना, और आजकल तो वात्सल्य जबकि श्रृंगार का ही हिस्सा है, उसको अलग ही एक रस भी मान लेते हैं लोग। लेकिन अभी मेरे को मतलब मुझे ये बोलना था सर, जैसे आपने बोला कि अनुभव का भी एक मैटर होता है। जैसे अगर आप हम सबको ये दिखा सके फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए कि अगर एक 16 साल की लड़की श्रृंगार में है तो उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे, और एक 25 साल की लड़की श्रृंगार में है तो उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे, और एक 40 साल की लड़की श्रृंगार में है तो वो किस तरीके, क्योंकि ऑफ कोर्स 16 साल की लड़की का श्रृंगार अलग होगा, 25 साल की लड़की का अलग होगा, और 40 साल की लड़की का अलग होगा। तो हम उसको कैसे पोर्ट्रे करें, ये थोड़ा सा अगर हम हमारी थोड़ी सी हेल्प कर सके इसमें। देखिए, मैं ये बताया पहले, इसमें अनुभव का एक कार्य है। 16 साल की लड़की का अनुभव श्रृंगार और प्रेम, उसकी एक्सपीरियंस दूसरा है, और 25 उम्र में उसको शादी होगा, और नहीं तो उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस लाइफ में क्या होगा पता नहीं, उसके अनुसार उसका श्रृंगार भी दूसरा है। और बाद में 40 है ना, 40 की बात, 40 की उम्र के बाद उसका मेरा अनुभव में मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि तब उन लोगों का जो मैटरनल, इसलिए ये बोलता है ना, मदर अफेक्शन इज मदर्स अफेक्शन ऑलवेज, द पीपल मेंशनिंग द मदर्स अफेक्शन। इन 40 उम्र में उसका अफेक्शन
उसमें the maternal love always cover with that love, I think. तो सर हम उसको कैसे, मतलब जैसे अगर मैंने एक्ट करना है ना, अगर मैंने मान लो मैंने एक परफॉर्म करना है, तो हम अपनी बॉडी में या फिर फेशियल एक्सप्रेशन को किस तरह से पोर्ट्रे करें कि देखने से लग जाए कि ये 16 साल की जो लड़की है वो कर रही है, वो प्यार में है, और ये इधर 25 साल की लड़की वो प्यार में है, और ये 40 साल की लड़की वो प्यार में है। ये फेशियल एक्सप्रेशंस के भी कोई डिफरेंशिएशन होंगे, या फुट मूवमेंट के या हाव भाव के क्या चेंजेस आते हैं, वो अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें। क्योंकि इसमें एक पैटर्न हम पहले पढ़े होंगे, क्योंकि कथकली में हम ऐसा इसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक स्त्री वेश के लिए लेडी कैरेक्टर एक पैटर्न बताए होंगे, उसमें हम हमारा अनुभव को भी जोड़ के, क्योंकि एक पैटर्न हमको बताया, वो पैटर्न पूरा पढ़ा, बाद में उसमें हमारा एक रिसर्च होता है, क्योंकि समूह में जो देखता है और हम पुराना जमाने का जो चित्र ये सब देखता है, उसमें क्या क्या भेद है, वो भेद को देख के हम इसका एक्टिंग करता है। क्योंकि कथकली में कथकली में एक ये है, क्योंकि सारी कैरेक्टर आता है एक ही कॉस्ट्यूम में आता है, तब उसको थिएटर में है तो आपको मेकअप के अनुसार उसका चेंज कर सके, लेकिन हमारा बॉडी से विदाउट मेकअप, आप आहारी को छोड़ दीजिए, उस सबको छोड़ के मैं बताता हूँ, उसको उसमें आपको दिखा सकेगा, क्योंकि पहले का उसका शाई है ना, क्योंकि अनुभव कम है तो सब सारे चीज में शाई ज्यादा होगा, और 25 उम्र में शाई के साथ उसको थोड़ा उसका क्या बताऊं, उसका एक्साइटमेंट भी होगी शायद, बट नहीं एक्साइटमेंट ज्यादा पहले है। 25 उम्र में एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं, क्योंकि उसको पता है और उसको शी कैन मैनेज दैट काइंड, आई कैन मैनेज एंड कॉन्फिडेंट है। हाँ, 40 उम्र में वो पूरा सबको देने के लिए, क्योंकि वो वहाँ मदर्स अफेक्शन का ज्यादा असर पड़ता है ना, तब उसमें जाता है। ऐसा एक डिफरेंस होगा, ये है मेरा मत। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक सवाल, ये सवाल बहुत अच्छा हो गया। रजनीश सर, एक सवाल हमें भी पूछना है। हाँ बिल्कुल पूछिए। कौन बोल रहे हैं, जरा एक बार नाम भी बता दीजिए। यहाँ तो प्रशोभ सर के हम लोग 3 विद्यार्थी एक साथ बैठे हुए हैं। मैं अजीत रंजन, प्रणाम सर। नमस्ते। योगेंद्र और सर्वज्ञ हैं सर। हाँ, सर्वज्ञ। हाँ, मेरा राम है सर्वज्ञ। सर एक बार आप आंगिकम भुवनम यशवाचिकम वाला श्लोक फिर से अच्छे से समझा दीजिए। और वो अभिनय दर्पण का श्लोक है। हाँ, और उसमें सर सात्विकता जो है, सात्विक समझने की जरूरत हमें रियलिस्टिक एक्टिंग में इन दिनों जरूरत पड़ रही है। सात्विक समझा दीजिए आप। मतलब अब मुझे लगता है कि मुझे सात्विक की ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वो चीज जो है वो अभी भी नहीं बना पा रही है। जब एक्ट करने को होते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होती, तो टेक्निकली तो अंग से भाव, मतलब बोलने से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखे हुए चीजों से टेक्निकली कर लेते हैं, पर सात्विकता जो आपने कहा कि वही शब्दों की, मतलब वो सब्जेक्ट में है, सात्विकता को फोकस करके उस श्लोक को थोड़ा अच्छे से समझना था सर। ये श्लोक अभिनय दर्पण का श्लोक है। अभिनय दर्पण भी नाट्यशास्त्र का जो स्पिरिट लेके बना हुआ है, क्योंकि अभिनय दर्पण नाट्य के लिए बना है। नाट्यशास्त्र में नृत्य और नाट्य के लिए, सबके लिए बनाया। अभिनय दर्पण पूरा नाट्य के लिए बनाया। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम्
आहार्यम चंद्रतारादि तन्नुम सात्विकम शिवम। उसमें मैं पहले बोल दिया चतुर्विध अभिनय है। नाट्य में चतुर्विध अभिनय है। वो चतुर्विध अभिनय के लिए पहले एक विषय है अंग, शरीर। इधर हम सामान्य नाट्य में हम देखेगा तो अंग पहले होता है हमारा शरीर, लेकिन और हमारा एक्सपीरियंस के बाद हमको पता चलता है स्टेज भी मेरा अंग है ना? हाँ बिल्कुल। और थोड़ा उसमें ज्ञान और ध्यान, एक मेडिटेटेड अवस्था में होता है। ये पूरा प्रॉपर्टी भी मेरा अंग है। हाँ बिल्कुल। ऐसा ये पूरा हमारा भुवन, हमारा वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड से थिएटर बोलते हैं ना? यस। हाँ ऐसा एक सोच आता है, ऐसा अनुभव में आप चलता है, ऐसा अनुभव में होना चाहिए। हमारा एम ये है, ये पूरा वर्ल्ड ये मेरा नटन के लिए ये रंगभूमि है। ऐसा सोच किसका है? अंकिकम भुवनम यस्या, भुवन को कैसे उसका स्टेज बनवा दिया, परफॉर्मेंस स्पेस बनवा दिया। और स्पेस मीन्स अपने आप भी स्पेस में है। हाँ हाँ हाँ। स्पेस, और स्पेस के बारे में सोचने में पंचभूत की बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ये सब कोरिलेटेड है। बिल्कुल। हाँ, इंडियन मेथोडोलॉजी में ये सब रिलेटेड है। और वाचिकम सर्ववांगमयम, वाचिक आवाज। हाँ, आवाज, जो भी आवाज, जो हमारा बोलना और जो भी आवाज होता है, ये सब वाचिक है। ये वाचिक, जो भी वाचिक होता है, जो भी शब्द होता है, ये सब मेरा अभिनय के लिए, क्योंकि मेरा अभिनय के लिए है और मेरे लिए है और मेरे वजह से है और मैं उसमें शामिल है। क्योंकि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूज्यमद पूज्यमिदम पूज्यात् पूज्यमुदच्यते। क्योंकि वो भी मैं इससे इसका बाहर नहीं, आई एम इन दिस। ऐसा वाचिक को मानना कौन मानता है? वाचिक यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्रतारादि। जो आहार्य होता है, इफेक्ट्स। आहार्य मीन्स सिर्फ हमारा मेकअप नहीं है, जो भी इफेक्ट बनाता है हम, क्योंकि आहार्य को ये है क्योंकि वो बाहर से बनाते हैं। आहार्य बाहर क्यों बनाता है? बाहर से नहीं तो बाहर से हम क्यों इफेक्ट, लाइट, सब इफेक्ट क्यों लेते हैं? हमारा अंदर का सात्विक को उठाने के लिए। हाँ। देखो, एक लाइट का एक मोड चेंज हो गया तो आप 10 स्टेज में आप ड्रामा करते हैं। एक स्टेज में जो सीन में जो संदर्भ में लाइट मिला, उसका ये मोड चेंज हो गया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ। तो आहार्य जो चंद्रमा सूर्य सबको हमारा इफेक्ट मानते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए इफेक्ट मानते हैं। कौन मानते हैं? आर्यम चंद्र तारादि तन्नुम सात्विकम शिवम। क्योंकि ऐसा सात्विक को, ऐसा ये सब्जेक्ट को, ये सारा विषय, ये विश्व का विषय एक ही है, उससे उनसे भी अलग नहीं, वो बाहर का चीज भी हमसे भी अलग नहीं। ऐसा रेखा अनुभव में कौन रहता है, कौन थिएटर, कौन अभिनय करता है, वो ही है शिवम, वो ही शिव हो जाएगा। शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिवम भूत, शिव बनने का क्या है? शिव का सोच, शिव का जो क्या है, शिव उसको मान के हम कैसे रहता है,
ऐसा एम में बनने के लिए वो शिव को हम पकड़ना चाहिए। वो शिव को पकड़ने के लिए क्या होना चाहिए? हम हमारा थिएटर में, हमारा जो एक्टिंग में जो भी करता है उसमें विलीन होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट के बारे में आप विलीन हो जाएगा तो वो सात्विक आपका अंदर में आएगा। आप दूसरा का पूरा कनेक्शन छोड़ के रहिए, सारे की सारे बातें इसमें हो जाएगा, बिल्कुल इसके लिए हो जाएगा। तब एक सृष्टि, तब हाँ बिल्कुल, एक रीजन सबका एक, आहार, वाच और इन सब का एक सब्जेक्ट एक है, सबका जितने इफेक्ट्स हैं, हर चीज जो है वो एक मकसद के लिए चल रहे हैं सर। तो अभिनय में जो ये मतलब इसकी तैयारी में सात्विकता के लिए जो, जैसे कि आहार के लिए, अंग के लिए, इसमें क्या है? इसमें देखो, ये व्यष्टि और समष्टि है ना। जो हम हमारा टीम मिलके एक नाटक करने के लिए सोचता है तो वो वहां व्यष्टि होता है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट और हम पहले देखो लेखककार ने उसका व्यष्टि में वो 16% उसका पर्सनलाइज करके एक चीज को बाहर रखते हैं, वो है बीज। वो बीज को हम ऐसा ये करके उसको पेड़ बनाते हैं। वो बीज को छोड़ेगा तो कैसे पेड़ रहेगा? नहीं तो आप कैसे ये पेड़ का अंग हो जाएगा? कभी नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएंगे। सही सर, ऐसा है। ऐसा आप जो सब्जेक्ट लिया उसका, क्योंकि वो सब्जेक्ट आने के लिए एक मोशन, एक इंस्टिंक्ट यस होते होंगे। वो इंस्टिंक्ट को पकड़ के आगे चलेगा। yes, उसको पूरा अलंकार देके चमत्कार देके। हाँ, लेकिन ये अभी क्या क्या होता है, बीज रहता है लेकिन उसको चमत्कार वहां से ऐसे डाल के, बीज कई जगह में घुसे होंगे लेकिन चमत्कार दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं। अभी ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ सर बाकी लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी ओके। ये अजित रंजन, आर यू ओके? यस मैं रिप्लाई ओके। हाँ सर, परफेक्टली सर, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। प्लीज और कोई सवाल अगर पूछना चाहे गुरुजी से। मुझे गुरुजी मत करिएगा। प्रशोभ जी, हाँ जी। गुरु नटराज है। अरे सर, आप भी तो हमारे लिए तो आप ही। प्लीज, हाँ, अगर और कोई पूछना चाहे, बहुत सारे। हाँ, सिद्धांत कुछ पूछ रहे थे। हेलो, नमस्ते सर। मेरा ये एक क्वेश्चन है कि जब हम मतलब रियलिस्टिक एक्टिंग में भी या फिर कथकली के माध्यम से आप बताइए कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स इमोशन पोर्ट्रे करते हैं, जैसे ये तो 8 रस हो गए, ये तो फिर मतलब एक बेसिक रस है, लेकिन जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को दिखा रहे होते हैं तो वहां उसके ट्रुथ तक कैसे पहुंचा जाए? या फिर आपने कभी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन प्ले किया होगा कथकली के तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस था? उसको आपने कैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, क्या है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन? आप बताएं मुझे, एग्जांपल दे दो सिद्धांत, क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन? सर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का एक एग्जांपल ये हो गया सर, मतलब थोड़ा फिक्शनल है कि सामने बेटा मर गया है और दुश्मन ने उसे मार दिया है, लेकिन आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते उस मूवमेंट पे, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन आपको खोज रहे हैं। आप सामने भी नहीं जा सकते, आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते उस तरीके से। मतलब अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो नहीं सकते वहां पे, आपको गुस्सा आ रहा है आप मार नहीं सकते वहां पे किसी को। तो वो उस चीज को, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, उसका प्यार होगा उस बच्चे के लिए, उसके बहुत
बिलीव भी नहीं हो रहा होगा उसको उस मोमेंट पे कि अब ये नहीं रहा या फिर कुछ हो गया उसके साथ, एक चीज खत्म हो गई उसके लाइफ से, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से पोर्ट्रे, मतलब वहां तक कैसे पहुंचा जाए? सुनिए, हम पूरा इंसान कैसे हमारा दिन में जीता है, क्योंकि सोने के समय हम पता नहीं हम जीता है और पता नहीं मेमोरी के साथ जीता है। एक्चुअली द ह्यूमन्स लाइफ आर हिस्ट्री ऑफ मेमोरीज, क्योंकि सारे की सारे मेमोरीज है। क्योंकि कैसे ये मैं मेरा एक मित्र को देखा, उसके साथ मेरा अच्छा ये भाव हो गया। कैसे होता है? क्योंकि मुझे पहले भी एक अनुभव है, अच्छा मित्र को मैं देखने के वक्त बचपन में भी एक संस्कार मिला है, क्योंकि मेमोरी मिला। संस्कार मुझका मेमोरी है। तो हमारे के सारा जीवन और अभिनय जो भी होता है वो पूरा हिस्ट्री ऑफ मेमोरीज। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स में जो भी हो गया, उसमें क्या किया आप, पहले उसका एक स्टेप बनाओ। क्योंकि बेटे को मार दिया, तो बेटे को मारने के बाद क्या होता है? मेरा बेटा मर गया और मेरे बेटे को ये शत्रु ने मारा, तो मेरा बेटा मर गया, शत्रु ने मारा, मैं क्या करूं और मैं कितना अच्छे से पालन किया। ये एक जर्नी है, उसका जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर का जर्नी है, और जर्नी में इमोशन है। तो आपका जर्नी, इंटरनल जर्नी में आप इमोशन छोड़ के आपको उसको चलाना मुश्किल है। आपको जो इमोशन के बिना रहना, तो आप जो भी साल्वेशन में, एक्टेसी में, निर्वाण में जाना पड़ता है। निर्वाण कौन किया? श्री रामकृष्ण परमहंस ने किया है, मैंने पढ़ा है उसका अनुभव के बारे में। लेकिन इसलिए शांत का अभिनय आपको कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। चिन्नैर जात्या विज्ञाय वस्तुना वितर्क कर्तव्य अभिनय, जो आपको एक्सपीरियंस आप देखा और आपका अनुभव मिला, उसको दिखाना है। मैं देखो फूल को देखा, वो फूल को मैं दिखा रहा है उसका। देखो एक लता को देखा, वो लता के अनुसार उसका ये बनाता है। तो वैसा जो कैरेक्टर को उसका अनुभव के अनुसार उसका मेमोरी शुरू हो जाएगा, उसके अनुसार ये अनुभव, ये अभिनय भी हो जाएगा। ये है मेरे मत जी। आर यू क्लियर? हाँ सिद्धार्थ, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। लेकिन आपका जो एक लाइन में उसका उत्तर पूरा नहीं है। उसमें क्या है, आप ये रस का अभ्यास एक अच्छा टीचर के साथ, गुरु के साथ करेगा, तो तब इसका इस्तेमाल आपको पता चलेगा। और ये स्टाइलाइजेशन में आप जो किया, उसका जो इतना एलाबरेशन होता है, उसको नॉर्मल करके उसका परफेक्शन अच्छा करके कर सकेगा। इसीलिए अभी सिनेमा एक्टर्स वो भी हमारे बीच में आके रस के बारे में और अभ्यास करते जाते हैं, क्योंकि वहां का उसका जो आपको पता है ना, मोहनलाल मलयालम एक्टर, जी, वो हमारा जैसा कथकली आसान गुरु लोगों के पास जाके इसको कैसे करूं, वो कथकली में पहले आप उसका ये जो भी स्टोरी देखे, कथकली में ये संदर्भ में क्या किया वो देखेगा, लेकिन उसका एक अनुभव लेगा। वो अनुभव लेके ये रियलिस्टिक एक्टिंग में, लोक धर्म में कैसे दिखाओ, वो उसका एक स्टाइल भी डालेगा उसमें। ऐसा वो स्टाइलाइजेशन और रियलिस्टिक स्टाइलाइजेशन उसमें जाके उसका एक लेकिन वो नया नहीं बता सकेगा, लेकिन उसका अनुभव से आ रहा। ये है मोहनलाल को ये सुपरस्टार अभी भी जो लोग में विश्व में जो भी इसको ये तारीफ देते हैं, इसके लिए उसका रिसर्च, उसका ऑलवेज फॉलोइंग एंड वो ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस एंड ही ऑलवेज मेकिंग इट्स प्रैक्टिकल।
बच्चों जाके एक दो फिल्म भी देखेगा तो उसको पता चलेगा ये कैसे करते हैं, तब उसका एक रिसर्च शुरू हो जाएगा और रिसर्च के अंत में वो नाट्यशास्त्र में आएगा। जी जी जी, मुझे भी पूछना था। प्लीज प्लीज। हाँ, जैसे सर अभी आपने सभी रसों के बारे में विस्तार से समझाया, तो मेरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। जो विभत्स रस है उसको हम विभत्स विभत्स देखो, हम पहले में नया नहीं, मैं भी नौजवान है, बच्चे है, आई एम ए चाइल्ड एंड मेरे से ज्यादा चाइल्ड कोई नहीं है ये विश्व में, मैं ऐसा सोचता हूँ। और सबको मैं बताऊं, हमारा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। देखो, आपका पर्सनालिटी आपका उच्चारण में दिखाएगा। और मात्रा नष्ट पुत्र नष्ट है, मात्रा लाभ पुत्र लाभ है, ऐसा वहां है। संस्कृत का जो प्रोनाउंसिएशन का ये एक शब्द किधर से लेके आना है। अकुहर्जनयाम कंठा लितलसानाम दंदो ऋडरसाणाम मूर्धौ उपवत्मानियानाम ओष्ठौ, ऐसा एक शब्द वायु का प्रयोग में ये अयुर्लकेयों अयोच हयवरलन यमगणनम जबन्य कटदस जबकटदस कपचटदा चटतव कपै शशुर हाल, ये महेश्वर सूत्र है। ये विश्वास है, हमारा बिलीव है। नटराज ने नृत्तावसानो नटराज राजो ननादडक्कम नव पंचवारम उद्धर्तु कामान सनगातु सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम, उससे आया है ये शब्द। वो शब्द को निरीक्षण करके पाणिनि ने, वैयाकरण पाणिनि ने उसको वो रिसर्च करके उसको मालूम हो गया एक एक शब्द इधर से उसका ये वायु देना है। इसलिए हमारा ब्रीथिंग अच्छा करो, एक्सरसाइज करके ब्रीथिंग अच्छा करो, तब हमारा भाषा भी अच्छा हो जाएगा। आप बताइए, पूछिए। शब्द विभत्स, शब्द विभत्स। हाँ जी सर, तो मेरे को इसी के बारे में जानना था, विभत्स रस के बारे में, कि हम इसको अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे दर्शा सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से। विभत्स में देखो एक हमारा, हम एक फनी थिंग देख रहा है, लेकिन वो क्या ये भी विभत्स है। और गुस्सा के साथ, अरे मुझसे नहीं हो जाएगा। देखो, भयानक के अंत में, उसका क्लाइमैक्स में बीभत्स आता है, क्योंकि भयंकर है ना, असहनीय है। असहनीय जब आता है तब बीभत्स का शुरुआत है। थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाहेगा? हाँ सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सर, पहला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में किसी भी कैरेक्टर के अंदर जाने की जो प्रोसेस है वो क्या है नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग? किसी भी कैरेक्टर को समझने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक प्रोसेस बताई गई है। काफी सारे एक्टिंग के कोचेस ने अलग अलग बताई है। मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें सिर्फ ये आप रखिएगा, क्योंकि सात्विक के बिना कुछ नहीं। तो एक कैरेक्टर को आप पढ़ने के वक्त वो कैरेक्टर क्या उसका जो सराउंडिंग थिंग्स यू फर्स्ट फाइंड इट, देन वो सराउंडिंग उसको कैसे उसको बनाया, तो वो कैरेक्टर है तो ऐसा अनुभव के अनुसार उसका एक पैदा हो गए होंगे कैरेक्टर। तो वो सात्विक को लेके आप आगे जाओगे तो रस के बारे में थोड़ा जानकारी लो, और वैसा एक रिसर्च आप करना पड़ेगा। छोटी कैरेक्टर है तो पहले वो समझना चाहिए, समझ के उसमें आपको एक ये मिलेगा उसका स्थायी, ये कैरेक्टर का स्थायी भाव ये है, वो ये स्थायी से ये सब कर रहा है, ये स्थायी रख के कितना संजारी भाव से चल रहा है ये ढूंढेगा तो वो कैसे कैसे अवस्था में चल रहे आपको पता चलेगा, और ये कैरेक्टर को कैसे कैसे अवस्था में लेके चलना भी है वो भी पता चलेगा।
देखो महाभारत में व्यास ने एक एक कैरेक्टर को कैसे कैसे लेके गया, आप उसका अंत में जाके रिसर्च करके देखिएगा तो रस के अनुसार लेके चला। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि कोई भी रस, जैसे कि करुणा, अगर मैं करुणा को प्ले नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसा तो कुछ मतलब मैं करुणा को फील नहीं कर पा रहा हूँ, प्ले कर पा रहा हूँ, फील नहीं हो पा रहा है, तो फिजिकलाइजेशन में ऐसा कुछ भी कोई टेक्निक है जैसे करुणा का फिजिकल से मैं मेंटल तक जा सकूं? नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है फिजिकल कैरेक्टराइजेशन से? टेक्निक है, इसलिए मैं बताया नाट्य शास्त्र में सारे की सारा टेक्निक है। क्यों ये रखा? पहले ये नाट्यकार ने ये बताया है किसको शांति है, मन में शांति और तंदुरुस्ती है, उसको नाट्य के आस्वादन कर सकेगा। किसको मन में शांति है और तंदुरुस्ती भी अच्छा है, उसको नाट्य कर सकेगा। और ऐसा मन रख के मुझे उसका शादी में जाना है और उसका मेरा प्रेमी ने मुझे छोड़ के चला गया, वो सब दिमाग में रख के आप इसके लिए तैयार होता है तो नहीं हो जाएगा। इसलिए कलाकार, क्योंकि वो अंतर्मुख होता है, अंतर्मुख, सारे के साथ उसका संबंध नहीं है। सामाजिक जीवन में हम सबके साथ हमारा संबंध रखना चाहिए, लेकिन उसको कम करो, अंदर रहो, अंतर्मुख बनो। क्यों अंतर्मुख बनना है? बहिर्मुख होने के लिए। सारे की सारा सात्विक से, सारे की सारा इफेक्ट से आपको बहिर्मुख बनना चाहिए। सो उसके लिए आप अंतर्मुख हो जाएगा तो ये हो जाएगा। जी ओके सर। सर एक सवाल और था, मैं ही पूछ लेता हूँ। एक आपने 2 बार बीच में बोला कि अगर वो हो जाएगा तो शिव हो जाएगा, या आपने बोला कि मुझे गुरुजी मत बोलिए, है ना, तो कि नटराज, तो क्योंकि हम जब माइथोलॉजी पढ़ रहे हैं पूरी, उसमें तो ब्रह्मा और ज्यादा तो शिव एक, क्या हम एक अंत देखते हैं कि परफॉर्मेंस का, कि यहाँ तक पहुंचना, या कुछ ऐसा मापदंड की तरह देखते हैं शिव को या नटराज को? ये मैं जानना चाह रहा था आप ही की बात से जोड़। शिव को देखो, शिव का जो मेथोलॉजी में हम जाएगा तो शिव को एक्चुअली 6 मुख है, 6 फेस एंड 5 और ये है। एक मुख से ये अकोरम, सद्योजातम, वामदेवम, तत्पुरुषम, ऐसा एक मुख से उसका एक स्वरूप है एक्चुअली। वो ये नटराज का स्वरूप एक्चुअली ये उसका 6th हेड है ना, उससे संबंध है। क्योंकि जो सिर से आया है उसका पूरे सारे की सारा तंत्र, 64 तंत्र के बारे में बोलते हैं ना, ये वाद्य गीत ये सब तंत्र का साथ मिलजुला है। इसमें जग्राह पाड्य मृग्वेदात सामभ्यो गीतमेव जा रसानात यजुर्वेदाद अभिनयाद रसानाद और अधर्वणाद अभी। ऐसा एक नाट्यशास्त्र का, जो नाट्यशास्त्र कैसे बनाया और उसका नाट्यशास्त्र बनने का एक पहले इसका ये उसका पूरा डिटेल किधर से मिला ये बोलता है। ऋग्वेदाद उसका पाड्य टेक्स्ट ऋग्वेद से मिला है और सामभ्यो गीतमेव जा, सामवेद संगीत का प्राधान्य है, क्योंकि मंत्र का उच्चारण का जो रीति उदात्त अनुदात्त स्वरिदम वो सिस्टमैटिक रिथमिक वे उसमें बताया है। यजुर्वेदाद अभिनयान, जो उसका परफॉर्मेंस का जो प्रयोग रीति, पूज में हम ये करता है ना, ये मुद्रा पूरा से मुद्रा करता है पूज में, दम देता है सिखा, ये सब पूजा पाठ में होता है। हम देते हैं पंडित जी ये करता है छोड़ दो, लेकिन पंडित जी को भी पता नहीं ये क्यों करता है,
एक एक इसमें एक एक तत्व है, वो तत्व को कौन पढ़ेगा, वो पढ़ के वो करेगा तो उसका वो ये पकड़ेगा तो पूजा में अस्त्र मुद्रा दिखाता है, वो अस्त्र मुद्रा दिखाने में अस्त्र का अनुभव हमारा मन में आएगा जो भी अच्छी तरह देखता है। तो उसका रस, उसका सात्विक पूरा अथर्व से मिला है, अथर्व पूरा तंत्र का ये है। इसलिए आनंद के लिए आनंद ब्रह्मा तत् च देहे विवक्षितम, आनंदम हमारा शरीर में, ये आनंद को निकालने के लिए जो जो प्रयास किया है उसमें आ गया है ये सब। इसलिए भारत में चतुर्विध पुरुषार्थ में आप देखो, पुरुषार्थ के बारे में बताएगा तो अर्थम, काम, मोक्षम, उसमें अर्थ, काम, मोक्ष, और पहले क्या था पुरुषार्थ में? चतुर्विध पुरुषार्थ, ज्ञानम, अर्थम, काम, मोक्षम, ऐसा चतुर्विध पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ के अनुसार हम हमारा जीवन यापन करना है। इसलिए एक एक पुरुषार्थ को अच्छी तरह संभाल के जाने के लिए उसमें आनंद आनंद मिलने के लिए सारे की सारे जनों के लिए, इंसान के लिए आनंद मिलने के लिए इसका प्रयोग किया। इसका प्रयोग यही शिव ने किया, क्योंकि शिवा ऑलवेज फाइंडिंग अदरवाइज, आफ्टर द फाइंडिंग हु रीच ही इज शिवा, जिसका आनंद का पूर्ति में रहता है। इसलिए आनंद नडनम आडिनान, शिव के बारे में बोलते हैं तो आनंद नडन करता है, आनंद उल्लास, सभी समय उसका पूरा उल्लास में रहता है, ही ऑलवेज एंजॉयिंग, और उसका सृष्टि स्थिति संहार इसमें भी उसका आनंद है, आनंद है। हाँ, अब देखे ना, ये सन्यासी उसका परंपरा में जो शमशान में रह के खुद ही आनंद करते हैं, बाउल गायकों ने गाते रहते हैं, क्योंकि ये है, मैं पहले बोल दिया, जो अंगिगम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम, ये अवस्था में क्यों होता है, उसको कुछ नहीं, लेकिन सब है, सब किसका है, वो उसको कुछ नहीं। पूज्य मतलब पूज्यमिदम, पूज्यात् पूज्य मुदच्यते, पूज्यस्य पूज्यमादाय पूज्यमेव अवशिष्यते। लेकिन अभी पूर्ण बोलता है, पूज्य है बोलता है तो पूज्य ही पूर्ण है, पूर्ण ही पूज्य है। तो हम ये बातें करके बोलेगा तो हम दूसरा लेवल में जाएगा। जी। तो आज का सर समय भी हो गया है, तो इसका आगे का भी प्लीज, अगर सर हाँ जल्दी प्लीज, छोटा सा सर प्लीज। हाँ प्लीज पूछिए सर। जैसे अभी मेमोरी की बात हो रही थी और रेस्ट की बात हो रही थी, तो मुझे याद है कि सबसे ज्यादा डांट मैंने ही खाई है आपसे, क्योंकि मैं श्रृंगार रस पोर्ट्रे नहीं कर पा रही थी, है ना, तो और मुझे गंदा भी पड़ता था, सबसे ज्यादा मार मुझे भी पड़ती थी। तो सर आपने तब मुझे ये बताया था, जब मैं सीता कर रही थी और मेरे से श्रृंगार रस बिल्कुल नहीं हो रहा था, आपने मुझे बताया था कि भाई शाहीन, जो श्रृंगार है वो श्रृंगार सभी रस की उत्पत्ति करता है। ये किस तरह होता है सर, ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए प्लीज, कि श्रृंगार कैसे बाकी सभी रसों की उत्पत्ति करता है, कैसे? रस में राज, रसराजनी ऐसा बोलेगा तो श्रृंगार है, क्योंकि एक सृष्टि के लिए, सृष्टि होने के लिए श्रृंगार होना चाहिए। मधुमक्खी फूल में आता है, वो फूल में आने के लिए उसका सुगंध होना चाहिए। सुगंध से उसको ये मधु को, ये मक्खी को ये आनंद मिलता है, वो आनंद को ढूंढ के वो चलता है। ढूंढ के चलने के वक्त वहां ये फूल और मक्खी दोनों के बीच में एक दूसरा सात्विक उत्पन्न होता है। वो सात्विक में एक प्रयोग चलते हैं, उसमें मधु भी लेते चलता है, लेकिन इसका ये रेणु, पुष्प रेणु दूसरे और भी लेके चलते हैं। ऐसा है श्रृंगार से आपको देखो, आप किसी के साथ प्यार किया तो वहां स्लोली गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आप टाइम में नहीं आएगा तो आपका पार्टनर को गुस्सा आएगा, और वो सस्पिशियस वाला, साइकिक वाला है तो किसी के साथ बातें किया तो भी उसको
ये आ जाएगा। ऐसा ऐसा देखो सारी की सृष्टि, आप ये प्रकृति को देखते हैं ना, शांत शालीन प्रकृति, उसके पीछे एक सुनामी भी है। ये देखो अभी कोरोना में हम फंसा है, पहले भी ऐसा वायरस थे लेकिन नहीं दिखाया था। वैसा आप कितना आनंद लेते हैं, उसके दूसरा साइड भी है। इसलिए श्रृंगार से सारे की सारा रस का उत्पन्न होता है। श्रृंगार से श्रृंगार तक जाके आप ये जमीन जोड़ के चलना है। इसलिए बोलता है मृत्यु को आप आनंद एंजॉय करो, लेकिन किसको हो जाएगा? सिर्फ एक कलाकार को, एक सही कलाकार को ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक शरीर से डेफिनेटली मैं बोलता हूँ एक एक्टर को उसका आनंद क्या है, उसका शरीर में किसको लेके वो सारी अनुभव को लेके वो चलते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे अनुभव होने के वक्त ये व्यक्ति क्या पूछते हैं, मैं हूँ, लेकिन ये मैं हूँ को नीचे करो, वो वायु को नीचे करो और हमारा अनुभव को लेके चलो, वो आनंद से हम धरती छोड़ के चल जाएगा। तब भी नटराज की बातें बोल के, आनंद की बातें बोले, काल भैरव का भी सोचना भी पड़ेगा। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया परशुराम मंडलम जी का, कला मंडलम जी का भी। और बिल्कुल मतलब मैं सच बताऊं तो नाट्य शास्त्र पर इतनी खूबसूरत मतलब इंटरेक्शन हमने देखा जूम में इन दिनों। जनरली बहुत होता है, अगर इंटरेक्टिव नहीं होता तो शायद इतना। सर जो प्रयोग करता है, एक बात सर, जो प्रयोग करता है उसके लिए है सर नाट्य शास्त्र। सिर्फ थियरी बताने के लिए नहीं है, गड़बड़ है। हाँ, सो सिर्फ थियरी बताने वाला, क्योंकि वो उसका मर्जी से, उसके बिना अनुभव से ये बातें कर रहे हैं। हम पूरा टेक्स्ट को रख के नहीं बोलता है। मैं आई एम नॉट ए एकेडमिशियन, आई एम ओनली ए परफॉर्मर। तो मैं सारे बातें मेरे बच्चों से इतने दिन में मैं बोलते रहता है अनुभव से। ये अनुभव होना चाहिए, ये अनुभव, ये प्रैक्टिस। आप ये नाट्यशास्त्र का एक श्लोक पढ़ो, उससे आप प्रैक्टिस करने के लिए सोचो, तब आपको पता चलेगा, अनुभव हो जाएगा। ये प्रैक्टिशनर का टेक्स्ट है। तभी ये क्लास इतनी इंटरेक्टिव रही और इतना इंटरेस्टिंग भी रही। हमें बहुत चीजें मतलब, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप खाली थ्योरी से समझाते तो शायद इतना हम नहीं समझ पाते जितना हम मजे में समझ पाए। तो बहुत खूबसूरत क्लास, और दोबारा एक बार मिलते हैं फिर कभी सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यदि ये सब प्रैक्टिकल हो जाएगा तब पता, अनुभव आ जाएगा। जी। नमस्ते, बहुत आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हमारी ये सीरीज चलती रहेगी आगे, और हम लोग हर बार सूफी संत पे, पोएट पे बहुत सारी सीरीज करते हैं, तो आपको लगातार मैसेज मिलते रहेंगे। तो आखिरी में दोबारा से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।